الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے عنوان سے بیان سننے کی سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جو کہا گیا جو سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے صرف 2 حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اس کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود سمجھنے کی اور سمجھ کر آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی۔ جب ہم سب کو سمجھ آ جائے تو میرا اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا پیغمبر جس بات کا تمہیں حکم دے دے وہ بات کام کر لو، جس کام سے میرا پیغمبر تمہیں منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔ میں دوسرے لفظوں میں آسان ترجمہ عرض کرتا ہوں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے پیغمبر کی پسند کو اپنی پسند بنا لو اور میرے پیغمبر کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے پیغمبر کی خواہش پر اپنی ہزاروں خواہشات کو قربان کر دو۔ یہ اس کا عام سا مفہوم ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی عملی تفسیر اور اس کی عملی تصویر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنایا
اور نبی کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک گروہ آتا ہے، ایک جماعت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے۔ ان میں ایک صحابی جن کا نام حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بھی اس میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات کو لیا، ہدایات کو لے کر پھر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے واقعات میں ہے کہ زندگی بھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قمیض کے بٹن بند نہیں کیے، چاہے گرمی ہے یا سردی، جتنی گرمی ہو اپنی قمیض کا بٹن بند نہیں کیا، جتنی سردی بھی ہے اپنی قمیض کا بٹن بند نہیں کیا۔ کہنے والے نے کہا کہ آپ اپنی قمیض کا بٹن بند کیوں نہیں کرتے؟ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو ایسے ہی دیکھا، جب میں نے دیکھا تھا تو محبوب کی قمیض کا بٹن کھلا ہوا تھا، جیسے دیکھا ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نقل میں اپنی زندگی کو ایسے گزار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، وفد ساتھ ہے، ایک بستی میں پہنچے اور بستی میں پڑاؤ کیا۔ اس بستی کے اندر اکثریت یہودیوں کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب قیام فرمایا، نماز کا وقت ہوا، صحابی کو حکم دیا اذان دو، اذان دی۔ جب اذان شروع ہوئی تو بستی کے بچے اس مؤذن کی اذان کی نقل اتارنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب انہوں نے نقل اتاری تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان بچوں کی نقل اتارنا بڑا اچھا لگا۔ فرمایا ان بچوں کو بلا کے لاؤ۔ صحابی ان بچوں کو بلانے کے لیے چلے، بچوں نے سمجھا ہمیں پکڑنے کے لیے آئے، تمام بچے دوڑ گئے۔ ان میں ایک بچہ کھڑا رہا، اس کو انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے سردار نے بلایا ہے، ہمارے محبوب نے بلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں۔ اب وہ ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ درمیان میں ایک بات آئی تو میں عرض کرتا ہوں، ان چھوٹے بچوں نے جیسے اذان سنا ویسے ان کی نقل میں اذان کہنے لگے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، جو کان سنتے ہیں وہ زبان بولتی ہے۔ اگر ہمارے بچے گھر میں گانا گانے لگے تو ان کو ڈانٹے نہیں، ہمارے چھوٹے بچے اگر گالیاں دینے لگے تو ان کو ڈانٹے نہیں۔ اس کی وجہ یہ قصور ان بچوں کا نہیں ہے جو بچے گالیاں دے رہے، قصور ان بچوں کا نہیں ہے جو گانے لگے، قصور ان والدین کا ہے جنہوں نے ان کو گالیوں کا ماحول دیا، قصور ان بڑوں کا ہے جنہوں نے بچوں کے سامنے گالیاں دی، انہوں نے گالیاں سنے۔ جو کان سنتا ہے وہی زبان بولتی ہے۔ یہی وجہ ہے ایک سکول کے اندر ایک سکول ٹیچر تھے، ان کے سامنے پڑھنے والے بچوں کا اس نے ایک دن ٹیسٹ لیا۔ بچوں سے کہا کہ بتاؤ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک بچے نے کہا وکیل بنوں گا، ایک نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، ایک نے کہا میں سائنسدان بنوں گا، ایک نے کہا میں پائلٹ بنوں گا، ایک نے کہا میں انجینئر بنوں گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اس نے معصومیت کے ساتھ کہا میں صحابی بنوں گا۔ اب وہ استاذ پریشان ہے کہ یہ صحابی کیسے بنے گا۔ میں ایک بات عقیدے کی عرض کرتا ہوں، ہم ختم نبوت کے بھی قائل ہیں اور ختم صحابیت کے بھی قائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب نیا نبی نہیں آئے گا تو نیا صحابی بھی نہیں آئے گا۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کا دور پایا ہو، نبی کی زندگی میں حالت ایمان میں
नबी को देखा हो या नबी ने उनको देखा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म है, इस उम्मत पर उम्मत खत्म है, सहाबियत पर सहाबियत खत्म है, तो सहाबी तो बन नहीं सकेगा। दुनिया का कोई भी मकाम हो, चाहे विलायत का हो, चाहे अदालत का हो, चाहे सदाकत का हो, वो अपनी मेहनत और मुशक्कत से आदमी हासिल कर सकता है। लेकिन दो मकामात ऐसे हैं, मकाम सहाबियत है या मकाम नबूवत है, ये आदमी अपनी मेहनत से हासिल नहीं कर सकता। ये मेरे अल्लाह की अता है। हर मकाम मकाम इर्तिकाई है, सहाबियत मकाम अताई है। सहाबियत वो मकाम है मेरे अल्लाह ने जिसको चाहा उसको अता फरमा दिया। उनके बाद मेरा अल्लाह क़यामत तक किसी को सहाबी का लक़ब नहीं देगा, मकाम नहीं देगा। तो यही वजह है वो उस्ताद परेशान हुआ, सहाबी तो बन नहीं सकता। आखिर इस बच्चे ने कहा कैसे? बच्चे के वालिद को बुलाया, दूसरों के वालिद पर उस दूसरे बच्चों के जवाब पर उसको परेशानी लाहिक नहीं हुई, दूसरों के सवाल पर इसको ताज्जुब नहीं हुआ, इस बच्चे के जवाब पर ताज्जुब हुआ। जब वालिद को बुलाया, कल आप हमारे स्कूल में आए, हम कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो स्कूल में दूसरे दिन उसका बाप गया, बाप से पूछने लगा, ये बताइए आपके घर में कौन सा अमल होता है, आप बच्चे को क्या पढ़ाते हैं? उसने कहा हुआ क्या है, पहले आप मुझे बता दें। उस उस्ताद ने कहा कल वाला वाकया सुना दिया, मैंने हर बच्चे से टेस्ट लिया, हर बच्चे से सवाल किया, बड़े होकर क्या बनोगे? हर बच्चे ने अलग जवाब दिया। आपके बच्चे ने कहा मैं सहाबी बनूंगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे ने ऐसा जवाब क्यों दिया, कैसे दिया? उसने कहा इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, हमारे घर के अंदर हिकायात सहाबा की तालीम होती है, हमारे घर के अंदर फजाइल सहाबा की तालीम होती है। इसके कान सुनते हैं, जुबान बोलती है, कानों ने सहाबा के फजाइल सुने हैं, इसकी जुबान ने सहाबी बनने की कोशिश की है, इसकी जुबान ने वही कहा है। इनके घर में पायलट का तस्करा, इनके घर में वकील का तस्करा, इनके घर में इंजीनियर का तस्करा, हमारे घर में सहाबा का तस्करा। मेरे अजीज दोस्तों, अपने घर में सहाबा का तस्करा करते रहा करो, अपने घर में औलिया अल्लाह का तस्करा करते रहा करो, अपने घर में अंबिया के फजाइल बयान करते रहा करो। खैर, मैं ये बात अर्ज कर रहा था, बच्चों ने अजान सुने, अजान की नकल उतारना शुरू कर दी। वहां से वो बच्चे भागे, एक बच्चा खड़ा रहा, उसने कहा कि जी चचा मैं तैयार हूं, आप मुझे ले जाइए। उस बच्चे को लिया, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। अब वो बच्चा करीब था वो बच्चा, उसके सर पे कपड़ा नहीं था, नंगे सर के साथ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब बोलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उस बच्चे ने बोला अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे महबूब ने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब वो बच्चा खामोश है, इतना वो समझता है ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने से मेरी यहूदियत खत्म नहीं होगी, ईसाइयत खत्म नहीं होगी। अगर मैंने कह दिया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यहूदियत पे पानी फिर जाएगा, ईसाइयत पे पानी फिर जाएगा। हज़रत मोहम्मद की रिसालत की गवाही देना वो समझता था कि ऐन इस्लाम है, वो समझते थे कि ऐन सहाबियत है। अब वो खामोश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर दस्ते शफकत रखा। मेरे नबी के हाथ का कमाल है या अल्लाह की तरफ से तब्दीली का वक्त है। मेरे महबूब ने दस्ते शफकत रखा, फिर फरमाया कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उस बच्चे की जुबान से निकला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुसलमान हुआ, घर चला गया, वक्त गुजरता गया,
वक्त गुजरता गया, वो जवानी में पहुंचा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कितने हैं? बाल मुबारक की 3 किस्में हैं, यानी जुल्फों के जिंदगी में एक बार महबूब ने 2 बार हलक कराया है, एक उम्रा के वक्त कराया है और एक हज के वक्त कराया है, और फिर जिंदगी भर महबूब ने जुल्फे रखी हैं। जुल्फों की 3 किस्में हैं, वफरा, लिमा, जुमा, यानी यहाँ बड़े से बड़े बाल इन कंधों से ज्यादा नहीं हुए, मेरे महबूब की जुल्फे हैं। लेकिन वो सहाबी जो बचपन में नबी की खिदमत में आए, उनके सर पे नबी का हाथ लगा। नबी के हाथ का करामत देखिए, नबी के हाथ की मोहब्बत देखिए। मैं एक वाकया मौजूदा दौर का सुना देता हूँ, फिर इसको समझना और आसान हो जाएगा। हमारे शेखुल हदीस व तफसीर इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर नव्वरल्लाहु मरकदहु गुजरांवाला के अंदर मौजूद थे, उस वक्त हयात थे। उनकी जिंदगी के अंदर हम लोग गुजरांवाला के अंदर होते थे। 1995 की बात, एक नौजवान है, वो चंद दिनों के बाद हमने उसको देखा, उसके चेहरे पे दाढ़ी आ गई। पहले वो दाढ़ी मुंडाता था, उसको दाढ़ी उसके चेहरे पे नहीं थी। कुछ अरसे के बाद अब उसके चेहरे पे दाढ़ी सज गई। हमने उनसे पूछा, आपने दाढ़ी कैसे रखी? किसी का बयान सुना, तालीम सुने, जमात के साथ वक्त लगाया, मदरसे में दाखिला ले लिया। कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ना मैं जमात के साथ गया, ना मैंने किसी का बयान सुना, ना मैं मदरसे में दाखिल हुआ। फिर आपकी दाढ़ी कैसे बड़ी हो गई? आपने दाढ़ी कैसे रख ली? कहने लगा, मैं गुजरांवाला गया, गुजरांवाला से गक्खड़ मंडी हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह उनकी सोबत में बैठा, हजरत की मजलिस में गया, मैंने सलाम किया। सलाम के बाद हजरत ने मुसाफा किया, मुसाफे के बाद मैं करीब हुआ, हजरत ने मेरे चेहरे पे हाथ लगाया। उसके बाद मैंने दिल के अंदर तहैया किया, जिन चेहरे के बालों पे शेख के हाथ रखे गए, मैं जिंदगी भर इन बालों को नहीं कटाऊंगा, मैं उस तरह नहीं लगाऊंगा। फिर मैंने दाढ़ी रख ली। ये मेरे शेख के हाथों की करामत है, मेरे शेख के हाथ लगे हुए मेरा दिल गवारा नहीं करता। जिन बालों पे मेरे शेख के हाथ लग जाए, मैं उन बालों को कटा दो। इन सहाबी का नाम हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह ताला अन्हु है। उनके बाल यहां तक चले गए जहां तक अजार बंद बांधा जाता है, कमर तक चले गए, बाल इतने लंबे हो गए। कहने वाले ने कहा, नबी की जुल्फे तो यहां तक हैं, आपके बाल कहां तक चले गए? अपने बालों को कटा दो ना। ज़ौक़े मोहब्बत में आके फरमाया, मेरे महबूब के हाथ लगे हैं, जिन बालों पे हाथ लग जाएं, मैं उन बालों को नहीं कटा सकता। जिंदगी भर हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने सर के बालों को नहीं कटाया, क्योंकि इन बालों पे महबूब के हाथ लग गए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ऐसे सहाबी हैं जिनको मुत्तबे सुन्नत कहा जाता है। हर सहाबी मुत्तबे सुन्नत है। लक़ब हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का है। कैसी इत्तिबा करते थे, सिर्फ एक वाकया अर्ज कर देता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर अपने काफले के साथ मदीना से बाहर निकले। एक बस्ती से जब मदीना से बाहर निकल गए, मदीना से बाहर निकल के फिर आपने काफले वालों को हुक्म दिया, काफले वाले रुक गए, अपनी सवारी को बैठा दिया, सवारी से नीचे उतरे, नीचे उतर के थोड़ा सा रोड से साइड पे चले गए, वहां पे फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर वहां से पैदल चले, वापस आ गए, सवारी के ऊपर बैठे, सवारी को खड़ा किया, चलने लगे। काफले वालों में से किसी ने पूछा, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, आपने ये क्या किया? इतनी देर काफले को रोके रखा, हमने आपको देखा है, आपने कोई तकाजा नहीं किया, आपने बोलो बराज नहीं किया, लेकिन आपने काफले को रोका क्यों? फरमाने लगे, मैं भी इसी तरह जिस तरह आप हमारे साथ हैं, हम नबी के साथ थे, नबी का काफला था, अमीर काफला हजरत रसूलुल्लाह थे, वो जा रहे थे,
इसी जगह पे मेरे महबूब ने काफिला रोका था, इसी जगह से चले थे, वहां पे जाके रुके थे, वहां पे बैठे थे, बैठकर अल्लाह के नबी ने तकाजा किया था। मुझे कोई तकाजा नहीं है, लेकिन मेरा देखो तो सही, मेरा रुकना नबी की नकल है, सवारी को रोकना नबी की नकल है, सवारी से उतरना नबी की नकल है, पैदल चल के जाना नबी की नकल है, वहां पे बैठना नबी की नकल है, वहां पे खड़ा होना नबी की नकल है, वहां से वापस आना ये भी महबूब की नकल है, फिर सवारी पे सवार होना नबी की नकल है, फिर सवारी को खड़ा करना महबूब की नकल है, सवारी के खड़ा होकर काफले वालों को खड़ा होने का हुक्म देना नबी की नकल है, काफले को चलने का हुक्म देना नबी की नकल है। वाकया एक है, नबी की नकलें कितनी हैं। अगर दिल में मोहब्बत हो तो वो देखता है मेरे महबूब ने किस मकाम पे क्या किया है, मेरे महबूब ने किस मकाम पे कौन सा काम किया है। ने नबी की पसंद है, नबी की पसंद को अपनी पसंद बना लिया। एक सहाबी रसूल है, फजाइल अमाल में वाकया मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में घर से बाहर निकले, एक 2 मंजिला घर को देखा, देख के ये फरमाया ये घर किसका है या रसूल अल्लाह, फुला का है। वापस आ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, जो साहिब खाना, जो घर का मालिक था, वो सहाबी नबी की मजलिस में आए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने यूं चेहरा फेर लिया, फिर वो इस तरफ हुए, सलाम किया। अल्लाह के नबी ने सलाम का जवाब नहीं दिया, अपना चेहरा यूं फेर लिया, सलाम का जवाब नहीं दिया। सहाबी साइड पे हो गए, साथियों से पूछने लगे ये आज का कोई मुरीद नहीं है, अगर शेख नाराज हो गए, पीर नाराज हुआ तो क्या हुआ, एक नहीं तो हजारों पीर हैं, एक को छोड़ के दूसरे के दर पे चले जाएं। उनको पता था हमारा पीर एक ही है, हमारा मुर्शिद एक है, हमारा मुरब्बी यही है, हमारा सब कुछ यही है। इस दर से चले गए तो जाएंगे कहां। अपने साथियों से पूछने लगे आज मैं सलाम करता हूं, सलाम का जवाब नहीं आता, वजह क्या है। सहाबा ने बताया हम नबी के साथ थे, आपके घर को देखा, पूछा ये घर किसका है, हमने बता दिया आपका है। लगता है मेरे महबूब को आपका वो घर पसंद नहीं है। वहां से उठे, अहदीस में आता है किसी को ले लिया, अपने घर को मुनहदिम कर दिया, जमीन बोस कर दिया, जमीन पे गिरा के फिर खिदमत अक़दस में हाजिर हुए हैं। देखा कि मेरे महबूब को पसंद नहीं है तो मैंने इसको क्या करना। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उन्होंने सुर्ख रंग का कपड़ा पहना हुआ, सुर्ख रंग की कमीज पहनी हुई। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, सवाल का अंदाज बताता है कि इसका जवाब क्या देना है। सवाल क्या है, अल्लाह के नबी ने पूछा ये क्या पहना हुआ है। अगर खुदा न खास्ता हमारे जैसा वहां पे कोई हो जाता, हमारे जैसा मौजूद होता तो जवाब क्या देता। या रसूलुल्लाह ये ब्रांडेड कपड़ा है, या रसूलुल्लाह दुबई से मंगवाया है, फलां दर्जी से सिलवाया है, इतना महंगा कपड़ा आया है, इतनी सिलाई कराई है, इस जैसा और कोई कपड़ा नहीं है जैसा मैंने पहना है। मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए कहते हैं अगर दुआ भी की जाए तो पूरी की जाए, तमन्ना की जाए तो फिर पूरी की जाए। अधूरी दुआ नहीं करनी चाहिए, अधूरी तमन्ना नहीं करनी चाहिए। आपने कई लोगों को यह जुमला कहते हुए सुना होगा, काश के मैं भी नबी के दौर में होता, काश के मैं भी नबी के जमाने में होता। ना ना, काश के मैं नबी के जमाने में होता, फिर अल्लाह मुझे साहबियत का मकाम अता फरमाते, अल्लाह मुझे ईमान नसीब फरमाते। पूरी बात करनी चाहिए, सिर्फ ये कहना काश के मैं नबी के दौर में होता। नबी के दौर में तो अबू जाल भी था, नबी के दौर में तो अबू लाब भी था, नबी के दौर में तो पत्थर
पत्थर मारने वाले भी थे, वो सब कुछ थे, मुकाबले में आने वाले भी थे, नबी के दौर में दीवाने भी थे, नबी के दौर में नबी के आशिक भी थे, नबी के दौर पे सब कुछ लुटाने वाले भी थे। एक शख्स की तमन्ना थी, काश के मैं नबी के दौर में होता, सिर्फ इतनी तमन्ना किया करता था। एक दिन वो सोया, उसने ख्वाब में देखा कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक गाड़ी में मौजूद है, मैं भी उस गाड़ी में मौजूद हूँ। चार खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्तजा चारों मौजूद हैं। कहते मैं भी मौजूद हूँ। उस गाड़ी को चलाने वाले हजरत रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अचानक ब्रेक का कोई मसला हुआ, हजरत रसूलुल्लाह ऐलान फरमाते हैं कि नीचे उतरो, पत्थर तलाश करके लाओ, टायर के नीचे पत्थर दे दो। मैं गाड़ी में खिड़की के करीब था, मैंने खिड़की को खोला, मैं नीचे छलांग लगा दी, मैं दूर चला गया। मैं पत्थर ढूंढता ढूंढता एक मैंने बड़े पत्थर को उठाया, अपने सर पे रखा। जब मैं गाड़ी के करीब पहुंचा तो मैंने देखा क्या, एक टायर के नीचे अबू बकर ने सर दिया हुआ, एक टायर के नीचे उमर ने सर दिया हुआ, एक टायर के नीचे उस्मान ने सर दिया हुआ, एक टायर के नीचे हजरत अली मुर्तजा ने सर दिया हुआ। मेरी आंख खोले, मैंने कहा अल्लाह ये तो उन्हीं का काम था, अगर मैं उनके दौर में होता मैं पत्थर तलाश करता रहता, वो अपने सर दे जाते। ऐसा ही हुआ मेरे अजीज दोस्तों। सहाबा की कुर्बानियां रब्बे काबा की कसम बयान तो की जा सकती हैं, लेकिन वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता जहां सहाबा पहुंचे हैं। चंद दिन पहले की बात, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए, शुहदाए यमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, जो 1200 सहाबा शुहदाए खत्म नबुव्वत हैं, ये कितना सफर करके चले, यमामा के मैदान में चले, मदीना से निकले, 1000 किलोमीटर का सफर तय किया। कोई घोड़े पे था, कोई खच्चर पे था, कोई ऊंट पे था, कोई किस चीज पे था, कोई पैदल था। कितना लंबा सफर किया होगा। तारीख ने लिखा है उनके पास जब पानी मौजूद नहीं था, पानी से प्यास कैसे बुझाए, ऊंटों को ज़बा किया। ऊंटों ने जो पानी स्टोर किया हुआ था वो पानी पीकर अपनी जान बचाने वाले। मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये बात अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी ने सवाल किया ये तुमने क्या पहना हुआ है। मालूम महसूस हुआ मेरे नबी ने इसको पसंद नहीं किया, वहां से वापस चले गए, अपने घर गए, अपने कमीज को उतार के तंदूर में फेंका, तंदूर में डाल दिया, उसको जला के रख दिया, कमीज को बदला। हजरत रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचे, अल्लाह के नबी ने बदली हुई कमीज को देखा, बदला हुआ रंग देखा, देखकर खुद फरमाया ऐ मेरे सहाबे आपने कमीज का क्या किया। या रसूल अल्लाह जला दिया है, खाक बना दिया है, या रसूल अल्लाह जलते तंदूर में डाल दिया है। फरमाया तुमने क्यों जलाया, अपनी औरतों को पहना देते, औरतों के लिए तो सुर्ख रंग का कपड़ा पहनना वो हराम तो नहीं है, उनके लिए तो जायज है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह जो रंग आपको पसंद नहीं है, जो मैंने नहीं पहना, मैंने यही देखा मेरे नबी की नापसंद है, वो मेरी भी नापसंद है। मेरे अजीज भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये बात अर्ज करता हूँ, नबी की पसंद को अपनी पसंद बना ले, नबी की नापसंद को अपनी नापसंद बना ले। मेरे चंद दिन पहले एक टेलीफोन आया, शेर काले ने कहा, फोन पे बात की, मौलाना मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा जी पूछिए। कहते मुझे मेरे अल्लाह ने बेटा दिया है, हम नाम रखना चाहते हैं, कौन सा नाम रखे। मैंने कहा आप बताइए, कोई नाम सोचा भी है। कहते सिर्फ सोचा नहीं, हमारे घर में तो नाम का झगड़ा चल रहा। मैंने कहा झगड़ा कैसे चला। हमने कहा मैंने कहा बताइए ना वो नाम कौन कौन सा है और झगड़े की वजह क्या है। कहने लगे हमने 2 नाम मुंतखब किए, एक नाम जो है वो घर वाले चाहते हैं, मेरी बीवी चाहती है, मेरे घर वाले चाहते हैं, मेरे उसके ननिहाल वाले, बच्चे के ननिहाल वाले, वो नाम उनका पसंद है। एक नाम जो है वो मेरी माँ की पसंद है। मैंने कहा नाम दोनों ठीक है। कहने दोनों ठीक है, दोनों के माने अच्छे, जे बिल्कुल दोनों अच्छे, दोनों नाम इस्लामी, जे बिल्कुल नाम इस्लामी। मैंने कहा आप बता सकते हैं वो नाम क्या है। कहते एक कहते हसन रख लो, एक कहते हुसैन रख
बोलो। मैंने कहा सुबहान अल्लाह, हसन हुसैन दोनों हमारी आंखों की ठंडक, हसन हुसैन मेरे नबी की आंखों की ठंडक, हसन हुसैन मेरे नबी के दिल के टुकड़े, हसन हुसैन मेरे नबी ने फरमाया ये तो जन्नत के फूलों की खुशबू है। मेरे नबी ने फरमाया ये जन्नती जवानों के सरदार है। हजरत नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। फरमाया ये हसन वो है जो दो मुसलमान आपस में लड़ेंगे उनकी सुलह कराएगा। लड़ने वाले कौन थे? हजरत मुआविया और अली थे। सुलह कराने वाले हजरत हुसैन थे। अरे दोनों नाम तो पसंद है, दोनों नाम अच्छे हैं, फिर बताओ ना झगड़ा क्या है? कहते हैं झगड़ा ये है, मेरी अम्मा कहती है बेटे का नाम हसन रख लो, दूसरे कहते हैं हुसैन रख लो। आप बताइए ना, आप मशवरा दीजिए कौन सा नाम रखे? मैंने कहा अल्लाह के बंदे इसमें तो पूछने की बात नहीं है। एक तरफ आपका खानदान है, एक तरफ आपकी अम्मा की ख्वाहिश है, अपने खानदान की ख्वाहिशात को माँ की ख्वाहिशात पे कुर्बान कर दो। ये माँ की तमन्ना, ये माँ की मोहब्बत वो है। मेरे नबी ने फरमाया काश के मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज में होता, मेरी माँ आवाज लगाती ए मोहम्मद, मैं नमाज को तोड़ देता, माँ के हुक्म को न तोड़ता। ये माँ तो वो है। अरे माँ की पसंद को अपनी पसंद बना लो, नाम भी अच्छा है लेकिन माँ की पसंद है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज भाइयों, हाथ जोड़ के मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जिंदगी गुजर जाएगी, जिंदगी गुजर जाएगी, नबी की पसंद के मुताबिक होगी तब भी गुजरेगी, अगर पसंद के मुताबिक नहीं होगी तब भी गुजरेगी। लेकिन देखना ये है कौन नबी की पसंद वाला, कौन नबी की नापसंद वाला, कौन नबी की पसंद को अपनी पसंद बनाने वाला, कौन नबी की पसंद को ठुकराने वाला। ये तो मैं अपनों की बात कर रहा, इधर माँ की बात कर रहा, मैं माँ से ऊपर बात करता हूँ। एक तरफ नबी जहां है, महबूबे जहां है, महबूबे खालिके कायनात है, वो रब्बे महबूबे रब्बे दो जहां है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंद है। एक तरफ उनकी नापसंद है, एक तरफ जहान वाले, एक तरफ दुनिया वाले। मैं दुनिया से, मैंने घर से बाहर निकला, मैंने दाढ़ी मुंडाई हुई थी, मेरी शक्ल कैसी? अरे देखने वाले कहने लगे तेरी शक्ल ऐसी है जिस तरह यहूदियों की है, तेरी शक्ल ऐसी है जैसे नबी के दुश्मन की है। बताओ ना, मेरे नबी का दिल दुखेगा या नबी का दिल खुश होगा? मेरे अजीज दोस्तों, ऐसा कभी न करना। मेरे नबी ने फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, दुनिया के अंदर जिसको जिससे प्यार होगा, दुनिया के अंदर जिसको जिससे मोहब्बत होगी, क़यामत के दिन हशर नशर भी उसी के साथ होगा। ये कैसा हो सकता है? मैं नारा ये लगा दूं, मुझे नबी से मोहब्बत है, मुझे नबी से इश्क है। नबी से इश्क और मोहब्बत बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है। मोहब्बत बताने की चीज नहीं है, मोहब्बत करके दिखाने की चीज है। लोग दावा नहीं देखते, लोग दलील देखते हैं। लोग क्या देखते हैं? मैंने कहा मैं नबी का गुलाम हूं, मेरी आवाज को लोग नहीं देखते, लोग गुलामी वाला लिबास देखते हैं, नबी की शक्ल देखते हैं, नबी की पगड़ी देखते हैं, नबी के लिबास देखते हैं, नबी का चलना देखते हैं, नबी का बैठना देखते हैं। मैं देखूंगा, मैंने खाना तो खाना, अगर खड़े होकर खाऊंगा, नबी का तरीका नहीं, नबी का तरीका बैठकर खाना है। अगर मैं पेशाब करूंगा, खड़े होकर पेशाब करना नबी की सुन्नत नहीं, बैठकर पेशाब करना नबी की सुन्नत है। मेरे अजीज दोस्तों, बाएं हाथ से खाना नबी का तरीका नहीं, दाएं हाथ से खाना नबी की सुन्नत है। बाएं हाथ से पीना नबी के दुश्मन का तरीका, दाएं हाथ से पीना नबी की सुन्नत है। दाएं हाथ से काम करना, काम की इब्तिदा करना नबी की सुन्नत है। मैंने देखना ये है, मेरे कलमा नबी का पढ़ा है, मैंने गुलामी का दावा नबी के साथ किया है, तो फिर मेरा अमल कैसा, मेरा किरदार कैसा? मुझे क्यों जमाने वालों को बताना पड़ता है मैं नबी का गुलाम हूं? अरे गुलाम वो होता है जिसको बताना नहीं पड़ता। अरे नौकर वो होता है जिसको बताना नहीं पड़ता, उसकी नौकरी बताती है, उसका स्टिकर बताता
है, उसकी वर्दी बताती है, उसकी चाल बताती है, उसका तरीका बताता है ये किसका गुलाम है। अगर दो यहाँ पर फौज वाले आ जाए, एक फौज बर्री वाला, एक बहरी वाला, एक बहरी फौज, एक बर्री फौज, एक फजाई फौज, तीनों फौजी खड़े हैं, उनकी वर्दी बताएगी ये बर्री कौन है, फजाई कौन है, बहरी कौन है। तीन मुल्क के क्रिकेट खेलने वाले आ जाए, उनकी वर्दी बताएगी, कौन से मुल्क वाला, उनके बैच बताएगा, कौन से मुल्क वाला। अरे मेरा चेहरा बताएगा किसका गुलाम है, मेरी पगड़ी बताएगी किसका गुलाम है, मेरा लिबास बताएगा किसका गुलाम है। हम सुन्नत रसूल पर अमल करके बता दे हम नबी के गुलाम थे, नबी के गुलाम है, क़यामत की सुबह तक नबी के गुलाम रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज भाइयों, मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करता हूं, जिंदगी गुजर जाएगी, ये बिल्कुल बर्फ की तरह है, पिघल जाएगी, पिघल रही है, पिघल जाएगी। आपकी मर्जी मेरी मर्जी, हम बर्फ को पानी में डाल के ठंडा कर लें मेरी मर्जी, दूध में डाल के ठंडा कर लें मेरी मर्जी, उसको रख के जाया कर दे मेरी मर्जी। हम सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार लें। अरे जवानी गुजर गई, अब तो बुढ़ापा आ चुका, अब मुंह में गोलियां रख के दाढ़ी मुंडा के नबी का सामना मैं और आप कैसे करेंगे। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, कल मैंने और आपने जिन हसीनों पे मरते हैं, रब्बे काबा की कसम ये हुस्न भी फानी है, हुस्न वाले भी फानी है। अगर मैंने और आपने मरना मिटना है तो नबी जो जहां के हुस्न पर मर मिटे, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में सबसे हसीन और जमील पैदा किया है। मेरे अजीजों और मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी गुजारनी है, दाढ़ी के बगैर भी गुजर जाएगी, दाढ़ी रख लेंगे फिर भी गुजर जाएगी, अपने सर को ढांप लेंगे तब भी गुजर जाएगी, सर को नंगा रखेंगे तब भी गुजर जाएगी। अरे बैठ के लुकमा खा लोगे तब भी अंदर चला जाएगा, खड़े होकर खा लेंगे तब भी चला जाएगा, दाएं हाथ से पिएंगे पानी तब भी अंदर जाएगा, बाएं हाथ से पिएंगे पानी ने अंदर चले जाना है। पानी नहीं अटकता, रुकावट नहीं बनती, लेकिन दाएं से पिएंगे सुन्नत का सवाब मिल जाएगा, बाएं से पिएंगे सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। अरे दाएं से खा लेंगे सुन्नत का सवाब मिल जाएगा, बाएं से खाएंगे सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। नक्शे कदम नबी के है सुन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के है सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिला। नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। मैं और आप सुन्नत हबीब पर अमल करने वाले बन जाएं। मैं आप हज़रात से, रात का वक्त है, अंधेरी रात है, रबीउल अव्वल का महीना है, आपके सामने ये झोली फैला के आपसे भीख मांगता हूं। मदरसे की भीख नहीं मांगता, पैसे की भीख नहीं मांगता, माल की भीख नहीं मांगता, चंदा नहीं मांगता, नबी का गुलाम होकर इस झोली में नबी की सुन्नत की भीख मांगता हो। कोई एक शख्स नबी का गुलामी में आकर इरादा फरमा दे, इंशाअल्लाह मैं नबी की सुन्नत पर अमल करूंगा, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह कबूल फरमाए, मेरा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। पिछले साल हमने एक जगह पे, हमारा 28 जगह है, उसमें इसी तरह बयान किया, हमने सुन्नत की भीख मांगी। इस दफा वहां पे जाना हुआ तो वहां पर साथी ने कहा, साजी आपने जो पिछले साल भीख मांगी थी, 7 बंदों ने मुकम्मल दाढ़ी रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 7 बंदों ने, क्या पता 1 रख ले, 10 रख ले, 100 रख ले, रखनी तो भाई सब कुछ चाहिए। सब अल्लाह के नबी के गुलाम है। सुन्नत पर मैं और आप अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।